Hello and welcome as we advance our discussion on production and operation management towards demand forecasting. Now, up till this point we have opened the topic of production and operation management, and we were trying to see what is the scope of production operation management. It starts from selecting a location, where will be my facility located. It works on international level, comes down to national level, down to state level, down to city level, down to within the city also at what industrial area level, and within that industrial area also which particular plot, corner plot, east facing, south facing, north facing, what size. So, up till this point we talked about how production operation management starts, what is the scope for production operation management, what all production manager can do for me, what all is expected out of a production manager. So, this is what we have been talking these days. So, we started with decisions regarding facility location, then we came down to decisions like facility layout. We also talked of evolution of production and operation management, how production and operation management has evolved, how it is slightly different for services and goods. Then we also talked about how production and operation management uses different methods, different layouts, different processes, which are also known as production processes. So, in last few lectures we talked about production processes and layouts. We talked about processes and layouts together. So, this is what we have talked about up till this point. Today we will be talking about demand forecasting. Now, before we talk about demand forecasting, there is another term which is very close to forecasting, which is known as prediction. To predict and to forecast. Now, as we talked about production and operation management, we saw that we are literally using production and operation interchangeably. We are not even sure where we should be making use of production, where we should be making use of term production management, where we should be making use of term operation management. We are just literally using them interchangeably. But when we delved into it, we saw that production is more of a term related to services and agriculture or veterinary products. In those cases, we make use of term production. While in manufacturing this, in fact, right now also I am saying, while making this, when this pen was made, I use the term manufacturing. If you read the sticker, it would say manufactured in year this, manufactured by this, marketed by this. So, when we talk of goods, we make use of manufacturing. So, those are the two terms which we literally use interchangeably, but they have a different meaning. Same is with these two terms, predict and forecast. In fact, if I ask you what is forecast, the simple one line definition, one line answer is to predict the future. What is forecast? To predict the future, to foresee the future. This is forecast. So, in fact, in the definition itself of forecast, we are making use of prediction. But what is the difference? What is that subtle difference between prediction and forecasting? There is a very subtle difference between prediction and forecasting, and in a sense, we can say that forecasting is a subset of prediction. Prediction is all that is related to future. All that you are trying to tell what will happen in future, what will happen tomorrow, what will happen 10 years down the line. So, prediction is whatever you are trying to say about future. Generally, we use predictions for astrologers. They predict how a life would be, how an individual's life would be. So, generally prediction is used for whatever you are telling me about future.
of the complete scenario of prediction where we could predict X, Y, and Z. What is forecasting? Forecasting is the scientific part of prediction. The area of prediction which uses numbers, or to be more precise, we can say forecasting is based on time series analysis. Time series analysis. We could say it is a prediction based on time series analysis. So what is forecasting? Forecasting is, in very simple terms, a prediction. There are a lot of types of predictions, but one type of prediction which is based on time series analysis, which is based on past data. It could be in any form and shape, is known as forecasting. So what is forecasting? Forecasting is a prediction. Yes, when you say that, when I ask what is forecasting and you say that forecasting is predicting the future, then you are absolutely right. But predicting the future based on scientific tools like statistical tools like time series analysis, past data. So forecasting is a subset of a larger field of prediction. प्रिडिक्शन तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है. प्रिडिक्शन तो एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं, प्रिडिक्शन तो हम भी कर देते हैं किसी मैच के बारे में, प्रिडिक्शन तो वेदर डिपार्टमेंट भी करता है. बट वेदर डिपार्टमेंट जब प्रिडिक्शन करता है तो हम उसको प्रिडिक्शन नहीं कहते. मैच के लिए जब भी पूछा जाता है एक्सपर्ट से, वो क्या करते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं. दे प्रिडिक्ट दैट टुडे दिस टीम विल विन. आईपीएल में जब शाम को एनालिसिस चल रहा होता है तो दे प्रिडिक्ट द स्कोर्स. दे डू नॉट फोरकास्ट द स्कोर्स, दे प्रिडिक्ट द स्कोर्स. एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो फोरकास्ट नहीं करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं. तो प्रिडिक्शन का तो स्कोप बहुत बड़ा है. प्रिडिक्शन इज समथिंग दैट is an art also, that is a science also, that makes tools of statistical tools also, that makes use of statistical tools also, which makes essentially use of my intellect, my experience, my gut feel, my value system. तो प्रिडिक्शन के अंदर जो साइंटिफिक टूल्स हैं उनका भी रोल रहता है, लेकिन वो साइंटिफिक टूल्स वाला जब यूज आता है तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं? फोरकास्टिंग में. वेदर फोरकास्ट. वेदर वाले क्या करते हैं? खूब सारा डेटा गैदर करते हैं. किस तरह के प्रेशर चल रहे हैं, किस तरह का बिल्टअप हो रहा है, किस तरह की गर्मी है, किस तरह के टेम्परेचर्स हैं, क्लाउड मूवमेंट कैसा है, और उसके हिसाब से वो फोरकास्ट करते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली वो डेटा ला रहे हैं खूब सारा, और उस डेटा को एनालाइज करके बताते हैं कि बरसात आएगी. एंड इनफैक्ट आज की डे एंड एज में तो अगर हम अपने मोबाइल्स के अंदर जो डेटा फोरकास्ट होते हैं उनको देखें तो उनके अंदर ये भी लिखा हुआ होता है, आप 8 बजे सुबह वेदर चेक कीजिए, वो कहते हैं कि 2 बजे बरसात आएगी. उसके बाद वो कहते हैं रात को 8 बजे बरसात आएगी. एंड वी सी कि 2 बजे के आसपास बरसात आ जाती है. एक्सट्रीम बरसात नहीं आई तो भी ऑलमोस्ट बरसात जैसा मौसम बन जाता है. मोर ऑफन देन नॉट हो भी जाती है. फिर वापस मौसम क्लियर हो जाएगा, रात को 8 बजे फिर से बरसात आ जाएगी. तो वो सब क्या हो रहा है? फोरकास्टिंग हो रही है. बिकॉज दे आर यूजिंग डेटा, दे आर यूजिंग द विंड स्पीड, दे आर यूजिंग द cloud cover, they are using the temperature differentials, they are using the low pressure high pressure differentials. वो सारा यूज करके वो क्या कर रहे हैं? फोरकास्टिंग कर रहे हैं. प्रिडिक्शन इज मेरा इंटेलेक्ट, मेरा अंदाजा, मेरा तुक्का, मेरी समझ. इट इज नॉट नेसेसरीली ओनली तुक्का, बिकॉज आईपीएल के अंदर जो हम देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं, या जो हम ये बिजनेस चैनल्स के ऊपर देखते हैं कि वो रेट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि ये शेयर किस रेट तक जाएगा, तो वो उनकी गट फील है, वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनका सालों का एक्सपीरियंस है जब उन्होंने इस शेयर को बढ़ते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, स्टेबल मार्केट में देखा है, गवर्नमेंट के कैसे पॉलिसीज आती हैं तो ये शेयर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो वो उनका एक्सपीरियंस है. तो प्रेडिक्शन इज मोर ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड, गट फील बेस्ड, वाइल फोरकास्टिंग उसका एक छोटा सेट है जो कि नेसेसरीली क्या करता है? साइंटिफिक अप्रोच लेता है, जहां वो टाइम सीरीज एनालिसिस करता है, जहां पे वो पास डेटा के ऊपर बेस्ड एनालिसिस करता है. तो दिस इज फोरकास्टिंग. हम फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं. इसका मतलब जो गट फील है, जो एक्सपीरियंस है, हम बाय एंड लार्ज उसकी बात नहीं कर रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव. वी आर टॉकिंग ऑफ फोरकास्टिंग. हाँ, अब इस डिमांड फोरकास्टिंग को भी हमने क्या कर दिया है?
तो एक चीज तो क्लियर हुई कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। अब इस फोरकास्टिंग को भी हमने क्या कर दिया है, जो टेक्निक्स हैं उनको बाय एंड लार्ज हमने दो में डिवाइड कर दिया है। किन किन में डिवाइड कर दिया है? क्वालिटेटिव फोरकास्ट, क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। So we have divided our forecasting techniques also into qualitative and quantitative. What are qualitative techniques? Today we'll talk about qualitative techniques. Next time when we meet, we'll talk about quantitative techniques. Broadly, what is the difference? Mainly, what is the difference between qualitative techniques and quantitative techniques? Quantitative techniques are based on numbers, are based on data. Essentially, the result that I'll be getting will be outcome of some treatment of numbers. That treatment could be as simple as an average. That treatment could be as simple as an advancement over average. It could be a moving average. It could be a weighted average. It could be exponential smoothing. It could be method of least squares. जो भी होगा, it will be based on numbers. कुछ ना कुछ डेटा होगा मेरे पास और उसके ऊपर अगर मैं डिसीजन ले रहा हूं, उसके ऊपर कोई एक साइंटिफिक मेथड लगा रहा हूं। Now, the difference between quantitative and qualitative would be कि quantitative में वो डेटा मेरे पास हो, वो डेटा आपके पास हो, आपके फ्रेंड के पास हो, आपके क्लासमेट के पास हो, यूएस में किसी के पास हो, हमारे पास आंसर्स कैसे आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच, इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। एवरेज निकालना है तो एवरेज सबका सेम आएगा, मूविंग एवरेज निकालना है 3 पीरियड का तो सबका सेम आएगा। तो दिस इज क्वांटिटेटिव। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स यूज नहीं होंगे, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हो सकता है नंबर्स यूज करेंगे, वो भी अपना जो फोरकास्ट देंगे उसके अंदर यूज करेंगे नंबर्स, बट यहाँ पे तो सभी एक्सपर्ट्स सेम ही आंसर देंगे बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ साइंटिफिक अप्रोच। तो इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फॉर्मूले। तो इसका तो आंसर सबका सेम आना है। इफ आई गिव यू अ डेटा सेट, उसमें आपका भी मीन सेम आएगा, दूसरे का भी मीन सेम आएगा। अगर हम वेटेड एवरेज ले लें तो आपकी भी सेम आएगी, दूसरे की भी सेम आएगी। अगर हम मूविंग एवरेज ले लें तो आपकी भी सेम आएगी, दूसरे की भी सेम आएगी। तो इसका मतलब द रिजल्ट्स कमिंग इन क्वांटिटेटिव मेथड्स आर सिमिलर बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नंबर्स। मेरा जजमेंट नहीं है उसके अंदर, मेरा ओपिनियन नहीं है। सो दीज आर क्वांटिटेटिव मेथड्स विच विल टॉक इन नेक्स्ट लेक्चर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट qualitative methods essentially. Okay, we'll put some names over here, then we'll see. So the methods that we'll be talking about would be jury of executives. इसको हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होएगा। इसके बारे में we'll talk in next class. Jury of executive opinion. Then we could have Delphi, then you could gather data from salesmen, or we are calling it consumer market, or you could also gather data from मार्केट। तो ये कुछ टेक्निक्स रहेंगी जिनसे हम क्वालिटेटिव मेथड्स, कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स रहेंगे जिससे हम डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स की तो हमारी ये बात हुई थी कि वो मेरा आंसर हो, आपका आंसर हो, सबका सेम आएगा क्योंकि वो नंबर्स पे बेस्ड है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो एवरीबडी विल बी गिविंग मी सेम आंसर। अब क्वालिटेटिव मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पे क्या आ जाते हैं? डिसीजन मेकर्स इंट्यूशन, इमोशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, वैल्यू सिस्टम, तो जब क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वहीं पे अगर आपको याद हो तो हमने जब क्वांटिटेटिव की बात की थी तो कौन से फैक्टर्स आ रहे थे?
क्वांटिटेटिव मेथड्स की जब बात की थी तो कौन से आ रहे थे? नंबर्स, फॉर्मूले। अब हम खुद ही देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स आर डिपेंडेंट ऑन नंबर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूले, तो वो तो सेम ही देने हैं रिजल्ट्स। जबकि अगर जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो डिसीजन मेकर जो भी फाइनली अपना वर्डिक्ट दे रहा है, जो भी अपना डिसीजन दे रहा है, डिसीजन मेकर्स इंट्यूशन। अब वो उसको कैसा लगता है, उसको लगता है कि आज बरसात आएगी या नहीं, उसको लगता है कि आज कोहली सेंचुरी मारेगा या नहीं, उसको लगता है कि आज राजस्थान रॉयल्स जीतेगा या नहीं, उसको लगता है कि आज मैच भी हो पाएगा या नहीं, तो उसका एक तुक्का, एक इंट्यूशन, उसको जो लगता है, जिसको गट फील कह देते हैं। तो डिसीजन मेकर्स इंट्यूशन, डिसीजन मेकर्स इमोशन। बहुत बार क्या होता है कि हमारा किसी प्रोडक्ट से अटैचमेंट होता है। अब मैं अगर एक मैनेजर हूं और मेरे को अपने मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट की फोरकास्ट करनी है, अब अगर वो मार्केट से मैं इमोशनली अटैच्ड हूं तो मेरी फोरकास्ट के अंदर थोड़ा सा बायस आने लगेगा। मैं थोड़ा सा अपने मार्केट के लिए पॉजिटिव रहूंगा, मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि मैं अपने मार्केट के अंदर मेरा प्रोडक्ट बेच सकूं, मैं अपने मार्केट को बता सकूं कि ये मेरा प्रोडक्ट है एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो ऐसे में हम ये क्या देखते हैं कि एक जो इमोशन है वो भी आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता था, फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, टाइम इवॉल्व हुआ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, समय के साथ साथ वो जो पहला प्रोडक्ट था वो अब इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मार्केट से। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जिसने वो पहली बार वो प्रोडक्ट बनाया था, जिसने अपना बिजनेस वहां से शुरू किया था, ही इज इमोशनली अटैच्ड टू इट, और वो कोशिश करता है कि उस प्रोडक्ट को वो जिंदा रख सके। अ वेरी गुड एग्जाम्पल कुड बी बजाज। बजाज सबसे पहले किसके लिए जाना जाता था? स्कूटर्स के लिए। अगर स्कूटर है तो बजाज है, अगर कार है तो एम्बेसडर है, फिर लेटर ऑन कार है तो मारुति हो गई, बाइक है, मोटरसाइकिल है, हीरो होंडा है। तो जब हम किसी प्रोडक्ट के साथ ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं तो उस पुराने प्रोडक्ट के साथ हमारा इमोशन अटैच्ड होता है। तो अब बजाज जब स्कूटर्स बनाता था, लेकिन धीरे धीरे स्कूटर्स वर आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि बाइक्स के अंदर जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा थी, बाइक्स के अंदर स्पीड अच्छी थी, कंट्रोल्स अच्छे थे। स्कूटर के अंदर वेट एक तरफ होता था तो वो स्किड हो जाता था, गिर जाता था, बैलेंस अच्छा नहीं था उसका। बाइक्स का बैलेंस रिलेटिवली बेटर होता था क्योंकि इंजन और फ्यूल टैंक उसका सेंटर के अंदर होता था। तो बाइक्स ने ओवरटेक कर लिया, स्कूटर्स लिटरली बंद होने लग गए। लेकिन बजाज वॉज अटैच्ड टू स्कूटर्स, और जब स्कूटर्स सब तरफ से बंद हो रहे थे तो बजाज ने क्या किया, लिटरली एक बाइक वाले इंजन के साथ एक स्कूटर भी निकाल दिया, 4 स्ट्रोक इंजन निकालने की कोशिश की। तो वो क्योंकि उनका स्कूटर से अटैचमेंट था, देवर ऑफ दिस ओपिनियन कि नहीं स्कूटर्स बिकेंगे, इंडिया के अंदर स्कूटर्स बिकते हैं, जो हम सुनते हैं हमारा बजाज, तो उनका एक अटैचमेंट था। तो ये इमोशनल अटैचमेंट भी कई बार डिसीजन मेकर का रोल प्ले करता है। तो अब हम यहाँ देख लें, कोई एक रैशनल मैनेजर होता है, एक नई जनरेशन का मैनेजर होता है जिसने स्कूटर देखे ही नहीं होते, वो यहाँ पे क्या कहता है कि विल प्रोड्यूस बाइक्स। जब बजाज बाइक्स बना रही थी, स्टिल दे ट्राइड कि उनका स्कूटर सर्वाइव कर जाए, लेकिन वो सर्वाइव किया नहीं। तो अब एक रैशनल मैनेजर तो क्या करता है कि स्कूटर को हटाओ, विल ओनली मैन्युफैक्चर बाइक्स। लेकिन डिसीजन मेकर का उससे अटैचमेंट था, इमोशनल अटैचमेंट था, तो उसने थोड़े टाइम तक और फोरकास्ट किया, नहीं नहीं स्कूटर्स पिक कर लेंगे, नहीं नहीं स्कूटर्स पिक कर लेंगे। तो डिसीजन मेकर्स इमोशन कैन कम इन टू प्ले। इसका मतलब एक जो रैशनल मैनेजर है उसका डिसीजन अलग है, एक इमोशनली जो डिसीजन ले रहा है उसका इमोशन वो डिसीजन अलग है। तो क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, डिसीजंस कैन बी डिफरेंट, जो भी हमने डिफरेंस देखा था कि क्वांटिटेटिव में डिसीजन सेम आएंगे, नंबर और फॉर्मूला यूज करना है, मैं डिसीजन लूँ चाहे आप डिसीजन लो, सेम ही आना है। यहाँ पे ड्यू टू दिस इंट्यूशन, किसी को क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज है, किसी को राजस्थान के मार्केट की ज़्यादा नॉलेज है, किसी को इंडिया की मार्केट की नॉलेज ज़्यादा है, तो उसकी जो इंट्यूशन होगी वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। किसी का कहीं डिसीजन के अंदर इमोशन आ रहा है तो हो सकता है उसका डिसीजन इतना रैशनल रहे या नहीं रहे। एक्सपीरियंस, एक 5 साल पुराना मैनेजर है और एक 25 साल 30 साल 35 साल पुराना मैनेजर है, तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज विल ऑल्सो बी एन इंपॉर्टेंट रोल। उसको पता है, ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स। ये जो 5 साल पुराना है ये तो क्या हुआ है, पढ़ करके आया है, इसने अभी ना मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ना गवर्नमेंट चेंज होती हुई देखी है। बट जो 35 साल से यहाँ पर है उसको मार्केट की भी पकड़ है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और उसने गवर्नमेंट्स आती हुई जाती हुई देखी है 35 साल के अंदर।
तो उसने देखा है कि कौन सी गवर्नमेंट के आने से किस बिजनेस पे किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, तो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज चलती है। देन देयर इज अ वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम क्या हो गया कि मेरा ऐसा वैल्यू सिस्टम है कि नहीं, मैं ये प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, जैसे कि मैं किसी प्रोडक्ट का नाम हिंदी में ही रखूंगा, इंडियन नाम ही रखूंगा, तो अब उस केस में आपका वैल्यू सिस्टम भी बीच में आने लग जाता है। तो अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी नाम का प्रोडक्ट है और मुझे ये तो चलाना ही चलाना चाहिए, ये तो इंडिया का प्रोडक्ट है, ये तो मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा, वैल्यू सिस्टम बीच में आने लग जाता है। थम्स अप को कोक ने खरीद लिया, लेकिन क्योंकि थम्स अप हमारा इंडिया का, इंडियन ब्रांड को ख़त्म कैसे होने देंगे, हमारा एक वो अटैचमेंट था कि थम्स अप सबसे अच्छी है। अब तो चलिए कोक भी ख़त्म, पेप्सी भी ख़त्म, लिटरली ये सब किसी काम के नहीं रहे। लेकिन एक टाइम था जब कोक और पेप्सी से ज़्यादा थम्स अप चलती थी, एंड थम्स अप वॉज एन इंडियन ब्रांड, जबकि पेप्सी कोक मल्टीनेशनल जायंट्स थे, थम्स अप ज़्यादा चलती थी। तो अब ऐसे केस के अंदर जब कोक ने यहां आकर के थम्स अप को खरीद लिया, थम्स अप को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया, खराब करना शुरू कर दिया, जिससे कि लोग थम्स अप को छोड़ दें और कोक को पीने लग जाएं। अब ऐसे टाइम्स के अंदर भी कोक इसको हटा नहीं सका थम्स अप को, क्योंकि वैल्यू सिस्टम इंडियंस के अंदर ये हो जाता है कि इंडिया की ब्रांड है। तो इंस्पाइट ऑफ कोक बीइंग अ ग्लोबल जायंट, इंडिया में उसको थम्स अप को जिंदा रखना पड़ा, और इंडिया में तब तक थम्स अप चली तब तक वो कोक से बेटर चली। अब तो ठीक है, विद टाइम लिटरली ये सारी ड्रिंक्स ही खराब हो गई हैं, जो बार बार बातें उछली। बट वैल्यू सिस्टम ये हो जाता है कि कई बार हमारे डिसीजन के अंदर वो वैल्यू सिस्टम स्टार्ट्स प्लेइंग रोल, कि ग्लोबल लीडर है कोक, लेकिन इंडिया में यू कुड नॉट रिमूव थम्स अप फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। कोका कोला का वो पोर्टफोलियो चलता था, लेकिन उसमें एक थम्स अप चलती थी, तो वैल्यू सिस्टम आ सकता है। अब यहां पे अब ये क्या हो गया, इन डिसीजन में जब ऐसी सारी बातें आ रही है, तो ऑब्वियसली एक जने का डिसीजन अलग होगा, एक जने का डिसीजन अलग होगा। कोई थोड़ा सा शांत लिबरल मैनेजर आएगा, उसका डिसीजन अलग होगा। कोई एग्रेसिव मार्केटिंग का मैनेजर आ जाएगा, उसका डिसीजन अलग होगा। दिस इज वाई जनरली हम क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं जब हम नए होते हैं, क्योंकि नए हैं तब ये चीज़ें प्ले नहीं करती, क्योंकि ना मेरे पास नया हूं तो एक्सपीरियंस है, ना मेरे पास नॉलेज है। अभी अगर मैं कोई वैल्यू सिस्टम लाने की भी कोशिश करता हूं, मैं 2 साल पुराना हूं, तो कौन उसकी वैल्यू करेगा? मेरे इंट्यूशन, मेरी गट फील पे कौन वैल्यू करेगा अगर मैं नया हूं? अगर मैं क्रिकेट से ही रिटायर हुआ हूं, तो मैं जब किसी प्लेयर को कह देता हूं कि ये लड़का अच्छा खेलता है, इसको टीम में लेते हैं, तो मेरे इंट्यूशन को, मेरी गट फील को कोई भी जना रिस्पेक्ट करेगा। मैं नया हूं और कह दूं कि ये 14 साल का लड़का है, ये बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, कौन मेरी इंट्यूशन को मानता है इफ़ आई एम न्यू? तो जनरली जब हम नए होते हैं तो हम किस में रहते हैं? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में। नया मैनेजर हूं, सेफ डिसीजन लेना चाहता हूं, आई विल रिमेन विद क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये नंबर बेस्ड है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आती है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर्स की और फॉर्मूले की है। जबकि ये वाले डिसीजंस जब लिए जाते हैं क्वालिटेटिव, तो एक बात क्लियर हो गई कि एक जो नोवाइस है, एक जो नया है, वो ये डिसीजंस नहीं ले सकेगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस इज प्लेइंग अ रोल, इमोशन इज प्लेइंग अ रोल, इंट्यूशन इज प्लेइंग अ रोल, नॉलेज इज प्लेइंग अ रोल। तो ये सब तो जैसे जैसे टाइम होगा तब वो हमारे पास ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये जो भी डिसीजंस हम लेने वाले हैं, इनमें जनरली नए मैनेजर्स, नए डिसीजन मेकर्स नहीं होंगे, इनमें जनरली एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज हम शेयर करनी चाहेंगे। सो व्हाट आर द मेथड्स व्हेन वी टॉक ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स? वी हैव जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, डेल्फी सेल्समैन्स ओपिनियन, कंज्यूमर मार्केट ओपिनियन। इन दोनों को हम साथ में रख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से मार्केट से आने वाले ओपिनियन है, लाइव मार्केट से आने वाले ओपिनियन है, जबकि ये दोनों हमारे पास एग्जैक्टली लाइव मार्केट से नहीं आ रहे। नाउ व्हाट इज जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन एंड डेल्फी? इन दोनों को हम लिटरली साथ देखने की कोशिश करते हैं। जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन जो है हमारे पास, उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुला लिए जाते हैं, और वो सारे एक्सपर्ट्स क्या करेंगे? अपना अपना ओपिनियन दे देंगे, और उन सब के ओपिनियंस को टैली करते हुए हम ये देख लेंगे कि हाँ, कौन सा ओपिनियन ज़्यादा तरफ झुक रहा है, और उसको हम मान लेंगे। एज सिंपल एज दैट। इट इज़ इन अ सेंस कि आपने खूब सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे कर लिए और उन एक्सपर्ट्स को कह दिया कि आप बताइए कितना फोरकास्ट करना है, तो सब ने अपनी अपनी समझ से एक फोरकास्ट दे दिया और हमने उसकी एक टैली तैयार कर ली।
हमने काउंट कर लिया क्या है। तो ये जूरी ऑफ ओपिनियन, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन भी कह सकते हैं, या इसको एक और नाम भी दे दिया जाता है एनजीटी, दैट इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। बाय एंड लार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ओपिनियंस ले रहे हैं और उस ओपिनियन के ऊपर सबने अपना अपना ओपिनियन दे दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब एक्सपर्ट्स हैं उस टीम के अंदर, उस पैनल के अंदर, उन सब एक्सपर्ट्स ने जो ओपिनियन दिया है वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से दिया है। तो मैं या तो उनका टैली तैयार कर लूँगा या मैं उनका एवरेज ले लूँगा, कोई भी एक मैकेनिज्म लेके इन सब के ओपिनियन को मैं फाइनली फॉर्मुलेट कर दूंगा। टैली बनाएंगे तो क्या करेंगे कि 10 जनों ने कहा है कि 100 यूनिट्स बिकेंगी, 5 जनों ने कहा है कि 70 यूनिट्स बिकेंगी, 3 जनों ने कहा है कि 150 यूनिट्स बिकेंगी। तो जब टैली तैयार की तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर लोग 100 कह रहे हैं, तो आई विल गो विद 100, या फिर यू कुड गो विद एवरेजेस डिपेंडिंग ऑन डेटा का स्कैटर कैसा है। अगेन जब वो डेटा मिल जाएगा तो फिर अब हम कहाँ चले जाएंगे, एवरेजेस की दुनिया में चले जाएंगे, या जैसे भी उस डेटा को इंटरप्रेट करना है। तो जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन बड़ा एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। एनजीटी हालांकि अलग टेक्निक होती है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इज अ डिफरेंट टेक्निक फ्रॉम जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, बट बाय एंड लार्ज दोनों का आइडिया यही है कि हम सबके ओपिनियंस लेते हैं, उनको अक्यूमुलेट करते हैं और उनसे कुछ भी इन्फरेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे लिए हुए ओपिनियन से हम एक इन्फरेंस निकाल देंगे। एक तरह से सबसे हमने डेटा इकट्ठा कर लिया और फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी। तो वो बाय एंड लार्ज ये दोनों मेथड्स हैं। डेल्फी क्या मेथड है? डेल्फी एक ऐसा मेथड है जहां पे एक पैनल तैयार किया जाता है एक्सपर्ट्स का। वो एक्सपर्ट्स किस तरह के होंगे? वो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, जैसे मेरे को अब एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। सपोज मेरा चलता हुआ प्रोडक्ट है, 10 साल 20 साल से चल रहा है, मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में तो है। सपोज आज मैं सोप मैन्युफैक्चरिंग में आता हूं, या लेट्स से आज मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आता हूं, मैं आज आ रहा हूं, दुनिया में तो बिक ही रहे हैं काफी टाइम से। तो ऐसे केस में तो हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट डेटा है हमारे पास ट्रेंड है कि मोबाइल की ग्रोथ कैसे हुई, अभी क्या ग्रोथ चल रही है, अभी प्रोजेक्शंस क्या चल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, अगले 6 महीने के लिए क्या प्रोजेक्शन है। तो वी कुड गो फॉर दिस वे। लेकिन अगर मैं किसी नए मार्केट में जा रहा हूं, किसी नए प्रोडक्ट में जा रहा हूं जिसका पास्ट नहीं है, जो कभी बना ही नहीं है, जो कभी किसी ने बेचा ही नहीं, खरीदा ही नहीं, तो फिर कैसे पता पड़े कि फोरकास्ट क्या किया जाए? इन सच केस व्हाट वी डू इज डेल्फी में आते हैं। डेल्फी में क्या है, हमने एक्सपर्ट्स ले लिए। अब मैं एक प्रोडक्ट ला रहा हूं, लेट अस कॉल दैट प्रोडक्ट जीटा। और मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूं राजस्थान में। अब मेरे को नहीं पता कि ये जीटा बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये क्या प्रोडक्ट है। तो अब ऐसे केस में, क्योंकि अभी तो ये मार्केट में नहीं आया, अभी तो ये कंसेप्ट प्रोडक्ट है, तो अभी तो ये मार्केट में नहीं आया है, तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं कि ये जो डेल्फी का हमारा पैनल होगा उसके अंदर जीटा के आसपास की जो टेक्नोलॉजीज हैं, लेट्स से जीटा एक बैटरी है, एक पावर सोर्स है, नॉट अ बैटरी, जीटा इज अ पावर सोर्स। तो अब मैं जब पावर सोर्स बना रहा हूं, इस तरह का पावर सोर्स पहले कभी आया नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट में आया होता तो उसकी कुछ सेल्स होती, पास्ट ट्रेंड्स होते, मैं हो सकता है क्वांटिटेटिव यूज कर लेता, बट ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, बट इट इज अ पावर सोर्स। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, यहां जो पैनल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, राजस्थान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की है पास्ट के अंदर, ऐसे 5-7 जनों को पकड़ लेंगे। पावर इंडस्ट्री को जो बिलोंग करते हैं, इट कुड बी इलेक्ट्रिसिटी, इट कुड बी सेल, इट कुड बी बैटरी, इट कुड बी इन्वर्टर, इट कुड बी सोलर पैनल, सोलर सेल्स, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स को पकड़ देंगे, जिससे कि उनका एक ओपिनियन तो पता पड़े कि पावर सप्लाईज जो है वो किस तरह से बढ़ रही हैं, इन्वर्टर्स किस तरह से बढ़ रहे हैं, बैटरी का कंजम्पशन किस तरह से बढ़ रहा है। जब अगर वो बढ़ रहा है तो इसका भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़ ही जाएगा। राजस्थान का इंडस्ट्रियल नॉलेज अगर कोई रखते हैं, 5-7 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स वाले हैं जिन्होंने नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस किया, तो उनको पता है कि राजस्थान में किस तरह से ग्रोथ होती है, इंडिया में एक्सेप्टेंस लेवल कैसा है, एक प्रोडक्ट कितने टाइम में पिक कर लेता है। जब उन्होंने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उनको अपनी जो फोरकास्ट थी उससे कितना डेविएशन मिला, तो इसका मतलब दे हैव बीन देयर, दे हैव इंट्रोड्यूस सम अदर प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ देखें हम अपना पैनल किस तरह का तैयार हो रहा है, कुछ तो स्पेशलिस्ट आ गए मेरे प्रोडक्ट के एरिया से, नॉट एक्जैक्टली दैट प्रोडक्ट, क्यों, वो तो बना ही नहीं है, लेकिन पावर सेक्टर से आ गए, इन्वर्टर वाले आ गए, बैटरी वाले आ गए, सोलर सेल्स वाले आ गए, इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए, एक्सपर्ट्स ले लिए।
मार्केट के एक्सपर्ट्स ले लिए, 4-5 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ले लिए जिन्होंने पास्ट में नई टेक्नोलॉजीज राजस्थान में इंट्रोड्यूस की है। देन कंज्यूमर ओपिनियन रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स रख लिए जिन्होंने कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर पे स्टडी कर रखी हो। तो इस तरह से अब क्या हुआ, मेरे पास 15-20 जनों का एक सॉलिड पैनल बन गया जो उस प्रोडक्ट को तो नॉलेज नहीं रखता है, लेकिन इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, इन दोनों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे हमें क्या पता, अभी तक तो बने ही नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव फोरकास्ट? जब बने नहीं, बिके नहीं, हाउ कैन आई गो फॉर अ क्वांटिटेटिव फोरकास्ट? तो ऐसे केस में फिर जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हो, इट कुड बी एन इलेक्ट्रिक कार, इट कुड बी एन इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, तो जब ये मार्केट में नहीं है तो फिर क्या करें? तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, डेल्फी यूज करेंगे। डेल्फी में क्या होगा, हम ऑटो इंडस्ट्री के 5-7 एक्सपर्ट्स ले आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऑटो की कितनी खपत है, 2-व्हीलर्स कितने बिक रहे हैं, कार्स कितनी बिक रही है, कौन सी चीज़ इंक्लाइन पे है, कौन सी चीज़ डिक्लाइन पे है, उनको यह एक्सपीरियंस है। तो ऑटो सेक्टर के 5-7 एक्सपर्ट्स लिया है। देन पावर सेक्टर के कुछ एक्सपर्ट्स लिया है, क्योंकि वो मेरे को कुछ इंसाइट्स दे देंगे कि पेट्रोल कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़नी एक्सपेक्ट की जा सकती है, सोलर का क्या स्कोप है, सोलर बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्कोप है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने वाली है क्या, राजस्थान के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की खपत कैसी रहने वाली है, सस्ती मिलेगी, सप्लाई मिलती है या नहीं मिलती है, कितना पावर कट होता है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे को हमारी बाइक को या हमारी कार को जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना है उसकी नॉलेज मिल रही है, ऑटो बिकता है या नहीं बिकता उसकी नॉलेज मिल रही है। तो इस तरह से फिर कुछ मार्केटिंग कंपनीज को, एक्सपर्ट्स को ले आएंगे जिन्होंने पास्ट में कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं राजस्थान के अंदर। कोई 2-1 ऐसे एक्सपर्ट्स ले आएंगे जिन्होंने कुछ ऑटो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं पास्ट के अंदर। तो अब यहां पे जो हमारे पास पैनल बन रहा है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मोटर का तो नहीं बन सकता, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स का तो नहीं बन सकता क्योंकि वो बिकते नहीं है, अभी तो नए बन रहे हैं। लेकिन वो जो आसपास का पैनल है कि ऑटो सेक्टर भी आ गया, पावर सेक्टर भी आ गया, वो सब लोग आ गए। अब ऐसे सारा जो एक पैनल बन गया है, तो यहां पे एक फैसिलिटेटर होगा, एक मॉडरेटर होगा, और इन सब से वो इनकी राय ले लेगा। और जब इन सब से वो अपना इन सब का ओपिनियन ले लेगा तो इन सब के ओपिनियन को वो एक फॉर्मल सी रिपोर्ट बना देगा जो एक जैसे उनको जोड़ देगा, जो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं, वेग लग रहे हैं, उनको हटा देगा। और कुल मिला के लेट्स से अगर 20 जनों ने 5-5 ओपिनियंस दिए हैं तो मेरे पास जो 100 ओपिनियन हो गया, उनको जब कंपाइल करेंगे तो कोई 30-40 रिफाइंड निकल के आएंगे। वो 30-40 फिर से सर्कुलेट कर दिए जाएंगे सब में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैं एक डायरेक्शन में सोचने लग जाता हूं और मेरा ध्यान नहीं जाता दूसरी तरफ। बट व्हेन समवन सेज कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो मेरे को अचानक से क्लिक होता है, यस दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव। तो अब क्या होगा, वो 30-40 जब मेरे सामने आएंगे, मैंने तो 5 ओपिनियन दिए थे, 20 पैनलिस्ट्स गेव 5 ओपिनियंस ईच, तो 100 ओपिनियन बने थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब मेरे पास 30 ओपिनियन आए तो मेरा कुछ बातों पे ध्यान जा रहा है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा नहीं होगा। और फिर मैं क्या चाहूँगा, मेरा ओपिनियन रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान रॉयल्स इस बार जीतेगा या नहीं जीतेगा IPL, आपका ओपिनियन होता है नहीं जीतेगा, अच्छी टीम ही है। फिर आपको बताया जाता है कि इस बार शेन वॉर्न भी आ जाएगा, इस बार राहुल द्रविड़ भी आ जाएगा, इस बार हम कोहली को भी ले आएंगे, इस बार हम डिविलियर्स को भी ले आएंगे, अब जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो अब जब आपने वापस से ये 30 क्वेश्चंस देखे तो आपका ओपिनियन बदल सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर के, पहले तो 5 ओपिनियन थे, लेकिन अब हो सकता है कि उन 30 ओपिनियंस की लाइट में मैं मेरे 5 में से 2-3 ओपिनियंस काट दूं और दूसरे 2-3 ओपिनियंस ऐड कर लूं। सो व्हाट हैज हैपेंड कि हमारे पास 100 ओपिनियंस में से 30 ओपिनियंस आ गए। अब मेरे को भी अपने 5 की जगह 30 दिख रहे हैं और मैं अपने ओपिनियंस को रिवाइज कर रहा हूं। और फिर रिवाइज करके वापस से हो सकता है मैं 5 नए दूं, या 5 नहीं दूं तो 2 ही दूं, 5 की जगह 7 दूं। लेकिन अब जो ओपिनियंस आएंगे वो बहुत नॉलेज में आएंगे। मेरा कई चीज़ों पे जिन पे ध्यान नहीं जा रहा था, मैं ऑटो सेक्टर का हूँ, मेरे को मार्केटिंग का नहीं पता था, या लेट्स से मैं पावर सेक्टर का हूँ, मेरे को ऑटो सेक्टर का नहीं पता था। लेकिन अब जब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली, 30 जनों के ओपिनियंस देखे, तो मैं अपना ओपिनियन रिवाइज कर सकता हूँ। तो अब फिर से आएंगे। लेकिन अब क्या होगा, वो बड़े इंटेलिजेंट ओपिनियंस है। अब उनको जब हम रिवाइज करेंगे, रिवाइव करेंगे, तो उनमें से 10, 12, 15 फिर से अच्छे से निकल के आएंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वो और रिवाइव किए जाएंगे, रिवाइज किए जाएंगे, और बेटर होते जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, हमारे पास एक इतना कॉन्क्रीट सॉलिड प्लान आ जाएगा 20 जनों के ओपिनियंस को रिवाइज करते करते,
कितना सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान आएगा पूरी इंडस्ट्री से कि सब जने एग्री कर रहे हैं और ऐसा एक प्लान निकल के आ रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेल्फी। यहां तो क्या हुआ, सब जनों से ओपिनियन लिया और उनकी काउंटिंग करनी शुरू कर दी। तो इट वॉज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग काइंड ऑफ आइडिया। हाँ बताइए क्या लगता है, 100 बिकेंगी, 90 बिकेंगी, 70 बिकेंगी, 100 बिकेंगी। कोई लॉजिकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन, पैनल डिस्कशन उसके ऊपर नहीं हुआ। बस अब हमने ओपिनियन लिया और गिनती लगा ली कि हाँ ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं। बट यहाँ पे वो बार बार छाना जा रहा है, उसमें से कचरा निकाला जा रहा है, जो लॉजिकल नहीं लग रहे हैं वो हट रहे हैं, और फाइनली जो ओपिनियन आता है, जो फोरकास्ट आता है, दैट इज़ अ वेरी रेलिवेंट फोरकास्ट। हाँ, एक और डिफरेंस हम कर सकते हैं कि क्वांटिटेटिव तो हमेशा ही उसके लिए यूज़ होता है जिसमें पास्ट है। नए प्रोडक्ट्स में क्वांटिटेटिव यूज़ नहीं हो सकता। क्वालिटेटिव जनरली नए प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, पुरानों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज बाइक्स तो इतने टाइम से चल रही है, मोबाइल्स इतने टाइम से चल रहे हैं, तो यू कुड यूज़ क्वालिटेटिव ऑल्सो देयर। लेकिन क्वालिटेटिव जनरली नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूज़ होएगा। तो ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन हो गया, डेल्फी हो गया। और ये जो दो हमारे हैं, ये कौन कौन से हो गए, सेल्समैन एंड कंज्यूमर मार्केट। ये कुछ नहीं है प्रैक्टिकली, ये उन लोगों के ओपिनियन है जो मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। सेल्समैन वो लोग हैं जो मार्केट में बेच रहे हैं। तो अगर वो कुछ राय देते हैं कि इतना बिक सकता है, इतना नहीं बिक सकता है, अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो डीमोनेटाइजेशन चल रहा है, तो उनका ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली मार्केट में जाके बेच रहे हैं। एंड सिमिलरली कंज्यूमर मार्केट में कंज्यूमर से पूछ लिया जाए कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो अभी लेंगे या नहीं लेंगे, अगले 6 महीने साल में अभी के हालात देखते हुए अगले साल 2 साल के अंदर वो मकान लेंगे या नहीं लेंगे, कार लेंगे या नहीं लेंगे, 2 व्हीलर लेंगे या नहीं लेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा। तो ये दो एक ऐसे केसेस हो गए जहां पे हम एग्जैक्टली जो मार्केट की पल्स है उसको जा करके ला रहे हैं। एक तो जो खरीदने वाले हैं और एक जो उन खरीदने वालों को प्रमोट करने वाले या बेचने वाले हैं। तो इन लोगों का ओपिनियन भी मैटर करता है। तो अल्टीमेटली बार बार हम यहाँ बोले क्या है, ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट्स। डेल्फी के अंदर हमारे पास कौन कौन होते हैं, एक तो होता है मॉडरेटर और एक होते हैं पैनलिस्ट्स। पैनलिस्ट अपना ओपिनियन देते रहते हैं, मॉडरेटर जो है उसको रिफाइन करता रहेगा, फिर वापस से रिपोर्ट सर्कुलेट कर देगा, फिर पैनलिस्ट अपना ओपिनियन देंगे और फाइनली एक बेस्ट रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। इन दोनों से ओपिनियन इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये एकदम मार्केट के नज़दीक है, ये एक्चुअल बायर्स हैं, ये एक्चुअल सेलर्स हैं, ये सब पॉलिसी मेकर्स हैं। दे आर नॉट वर्किंग इन मार्केट बट दीज टू आर वर्किंग इन मार्केट। तो इसलिए इनका ओपिनियन भी अपन ले सकते हैं। बट अगेन दीज आर ऑल ओपिनियंस, और ओपिनियंस हैं तो दे कैन डिफर। हमने जिन कंज्यूमर्स को पकड़ा, हमने जिन सेल्समैन को पकड़ा बात करने के लिए, हो सकता है उनसे दूसरों का ओपिनियन अलग हो। तो ओपिनियंस कैन डिफर, क्वालिटेटिव डिसीजंस, क्वालिटेटिव फोरकास्ट, क्वालिटेटिव मेथड्स विल गिव डिफरेंट आंसर्स, वैल्यूज, जबकि क्वांटिटेटिव में हमारे पास सेम आएगा, नंबर्स एंड फॉर्मूला बेस्ड। इसमें कोई डिफरेंस का स्कोप नहीं रह जाता है। सो दिस वॉज आवर टुडेज डिस्कशन अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग, और डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर क्वालिटेटिव टेक्निक्स। मेजर डिफरेंसेस, ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे काम आता है, ये जनरली न्यू प्रोडक्ट्स के लिए काम आ जाएगा। देन इसमें जनरली हमेशा सेम आंसर्स आएंगे, जवाब आएंगे, फोरकास्ट आएंगे। इसमें फोरकास्ट अलग हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वी आर गोइंग बाय इमोशंस, एक्सपीरियंस, नॉलेज, वैल्यू सिस्टम, इंट्यूशन, वो सबकी अलग होती है। सो दिस वॉज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जनरली हमारे जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो तो कहाँ से बनेंगे, ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव से। इस टॉपिक पे ये हो सकता है कि थ्योरी का क्वेश्चन अगर बनता है तो बन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।